معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد اکرم رضا اسحاقی صاحب قبلہ، اور آج کل جو ملک بھر میں، ملک ہندوستان میں جو چل رہا ہے، جو دل خراش خبریں نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں، دل کو دکھا دینے والی، جو حضور کی شان میں اپنی گندی زبانوں سے غلاظت بک رہے ہیں، ان کے تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں۔ اور یہ بہت اہم ویڈیو ہے، یہ سمجھ لیں آپ۔ میں نے ابھی حضرت سے کچھ گفتگو کی، آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر جو ابھی اس وقت جو چل رہا ہے، نرسنگ آنند بابا رام گیری اور نرسنگ آنند کے چیلے جو گستاخی کر رہے ہیں حضور کی شان میں، تو اس کے تعلق سے جو جس طرح سے یہ منہ سے اپنی غلاظتیں بکتے ہیں، تو اس کو ہم یا ہمارے جیسے یوٹیوبر ہمارے بھائی لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں اپنی اسکرین پر۔ تو وہی میں حضرت سے بات ابھی گفتگو کر رہا تھا، تو میں نے حضرت سے پوچھا اس کے تعلق سے، کیا ان کو ہمیں اپنے چینل کے ذریعے دوسرے لوگوں تک پہنچانا، کیونکہ وہ اس طرح سے منہ سے غلاظتیں نکال رہے ہیں۔ میں نے اپنی ویڈیو میں، گزشتہ ویڈیو میں کہہ بھی چکا ہوں کہ ان کی باتوں کو سن کر کے ایسا احساس محسوس ہوتا ہے کہ ہم پر توبہ لازم ہو رہی ہے۔ ایک ایسی دلخراش اس طرح کی باتیں وہ کرتے نظر آتے ہیں، اس کو سن کر کے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو ایک تو میں سوال حضرت سے یہ کروں گا، میں یہ بہت اہم سوال ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس طرح سے حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں یہ لوگ، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں روڈ پر نکلنا چاہیے؟ کیا اگر ایف آئی آر کروانی چاہیے تو کس انداز میں کروانا چاہیے؟ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اس بات کو کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے، کس سے ہم اپنی شکایت درج کرائیں، کس تھانے میں جائیں، کہاں جائیں، کہ ہماری کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یا پھر کہ خاموش ہی بیٹھے رہے ہم۔ سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے، دو سوال میں نے اچانک حضرت آپ سے کر لیے۔ سب سے پہلے مجھے آپ اس پر رہنمائی کریں، ہماری اور ہمارے یوٹیوبر بھائی جو بھی لوگ ویڈیو بناتے ہیں، پوسٹ کرتے ہیں، ان کی گندگی جو زبان سے اپنے نکالتے ہیں، غلاظت کو منہ سے نکالتے ہیں، تو یہ غلاظت جو آتی ہے سوشل میڈیا پر، اس کو ہم اپنے چینل کے ذریعے آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے تعلق سے کچھ وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ میں اس کے تعلق سے معروف بھائی اتنا ہی کہوں گا، واقعی ایک انسان نے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی، جی، اور وہ انسان آج بھی اریسٹ نہیں کیا گیا، اس کو جی، صرف حراست میں لیا گیا۔ حراست میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو، بڑھیا سے اس کو کھلایا پلایا جا رہا ہے، جی، جی، اس کی نگرانی کی جا رہی ہے، حفاظت کی جا رہی ہے۔ جی، جی، یہاں میں کہنا یہ چاہتا ہوں، پہلے تو جو یوٹیوبر حضرات ہیں، آپ کا جو سوال ہے، جی، جو اس نے غلاظت بکی ہے، وہ جو ویڈیو ہے اس کو خدا را شیئر مت کرو۔ اچھا، جس کے پاس بھی پہنچے اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ اچھا، آپ بس اس کو بس عام طریقے سے یوں ہی کہیے بس کی گستاخی کہ اس نے گندی زبان استعمال کی ہے جو ناقابل برداشت ہے، جی، بالکل، اتنا کہیں، جو بھی حضرات بیان کریں۔ باقی جو اس نے من و عن جو بیان کیا ہے بیانی، اس ویڈیو کو نہ دکھائیں۔ جو دکھائی گئی ہو اب تک، تو اگر ڈیلیٹ کرنا ممکن ہو تو کر دیں، ورنہ بڑھائیں نہیں۔ اب جو بھی کوئی غلطی ہم سے بھی ہو چکی ہے حضرت۔ اچھا، کوئی بات نہیں، تو اس کو اب جو ہے آپ اس کو آگے نہ بڑھائیں کسی بھی طریقے سے۔ انشاءاللہ آگے سے دھیان رکھیں گے۔ دھیان رکھیں ان باتوں کا، کیونکہ ان کا یہ مقصد رہتا ہے سستی شہرت۔ یہ کمینے یہ جانتے ہیں کہ ہمیں جو شہرت، جب ان کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، ایسے میں ہی پھر یہ بھونکتے ہیں۔ باقی تو بڑی پلاننگ ہے، پشت پناہی حاصل ہے۔ ایسے میں جبکہ کب کوئی انسان کسی طریقے کی بات کو لے کر کے چلتا، اپنے حقوق کی بات کو کرتا ہے، تو کتنے نکل کر کے آتے ہیں معروف بھائی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ملک صاحب شریعہ سے نہیں چلے گا، شریعہ سے نہیں چلے گا، یعنی شریعت سے نہیں چلے گا، سنویدھان سے چلے گا، سنویدھان سے چلے گا۔ تو سنویدھان سے کیا مسلمان کوئی آج ایک بھی مسلمان ایسا ہو جو آیا ہو جس نے یہ کہا ہو کہ صاحب سنویدھان سے نہیں چلے گا؟ مگر میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سنویدھان سے کہاں چل رہا ہے؟ سنویدھان سے اگر چلتا تو ایک مفتی سلمان اظہری ایک اتنی سی بات کہنے پر وہ 9 مہینے جیل کے اندر ہیں۔ کون کون سی دھارائیں لگا کر کے ان کو جو ہے یو پی اے اور کیا کیا لگا کر کے ان کو، ہم تو جانتے بھی نہیں تھے، پاسا ایکٹ اور یہ لگا کر کے ان کو جیل میں ڈال رکھا ہے گا۔ اور ایک وہ انسان جس نے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو تہلکے میں ڈال دیا، اس نے پریشان کر کے رکھ دیا۔ اور وہ جو کہتا ہے نیتیش رانے کی 24 گھنٹے میں مسلمانوں کو، وہی سب جتنے بھی ہیں یہ، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر کہاں چلے جاتے ہیں وہ لوگ
जो इस तरीके की बातें करते हैं कि जिसने संविधान को हाथ में लेने की कोशिश की उसको बख्शा नहीं जाएगा, तो कहाँ बख्शा तो जा रहे आप। अगर कोई बख्शा नहीं जाता तो भी शायद वो भी एक खास तबके को निशाना बनाया जाता। जी। तो ये क्यों हो रहा? इससे हमें ये लगता है कि संविधान से नहीं चल पा रहा। जी बिल्कुल। अगर संविधान से चलता तो मैं समझता हूं कि उसको अरेस्ट किया जाता। उसको या तो कोई भी ये कह दे, अभी अब सब तो नहीं होते एक से, अब जो भी है गलती को गलत कह रहे हैं। बाकी बहुत से पंडित ऐसे भी निकल करके आए, हम अभी वीडियो देख रहे थे कि जिन्होंने उसकी निंदा की है, इस पर मजम्मत की है, तो सब ना हम सबको कह रहे हैं। मगर जो इस तरह के दरिंदे हैं जो मुल्क के फजा को खराब करने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं, तो उनको आखिर ये नहीं कि अरेस्ट किया जाए, अब उससे अरेस्ट का काम नहीं बन पाएगा। इनको यूपीए और इनके खिलाफ सख्त धाराएं लगा करके इनको जेलों में डालना चाहिए ताकि ये इबरत का निशान बन सके, दूसरा कोई इस तरह की गलाजत वाली जबान इस्तेमाल ना कर सके। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो जो भी बनी शेयर ना करें। अब एक मसला ये आता, हमारे पास भी बहुत से फ़ोन कर रहे हैं कि हज़रत प्रोटेस्ट होना चाहिए और ये होना चाहिए। ये तो देखिए हर अपने शहर के हालात वहाँ के उलमा बखूबी जानते होंगे, समझ रहे हैं। मगर मुझसे अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप अगर रैली निकालेंगे, कितनी बड़ी निकाल लेंगे? क्या इम्तियाज़ जलील से बड़ी रैली निकल जाएगी? नहीं। इम्तियाज़ जलील से बड़ी रैली तो नहीं निकाल सकते ना आप। कितनी बड़ी उसने रैली निकाली। अगर उसका वाकई असर होता तो ये ना और रामगिरी को अरेस्ट कर लिया जाता और संविधान की जो बातें करने वाले लोग हैं अगर उस संविधान को लागू करते, कानून के दायरे में कानून अपना काम करता, तो ये 4-5 दिन के बाद, ये 2 महीने के अंदर दूसरी बड़ी गुस्ताखी है जी। तो ये शायद हिम्मत भी नहीं कर पाता। इससे बढ़कर के इसके चेले ने बोला है। हाँ, वो भी बोल रहे हैं, वो तो क्योंकि जो जिस गोबर को वो खा रहे हैं, मूत को वो पी रहे हैं, वही वो भी कर रहे हैं। अब हम सबको नहीं कह रहे हैं, मगर इनको हम कहेंगे, हमारा हक बनता, हमारा दिल दुखा हुआ है, समझ रहे हैं, इसलिए हम इनको बोलेंगे। इसलिए ये हमारे आका की शान में इस तरह की गुस्ताखी करें। लेकिन कोई इस बात को लाओ, हम चैलेंज करते हैं, हमारे कोई रहनुमा या मुसलमान तुम्हारे किसी पेशवा को, रहनुमा को कोई बुरा भला कहते हो? हमारी शरीयत इजाजत ही नहीं देती इस बात की। इनको तो बुरा कह रहे हैं जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले में हम किसी देवी देवता को, किसी के भगवान को बुरा नहीं कर रहे। ना, किसी को हमारी शरीयत भी इजाजत नहीं बयान फरमाता। और साथ साथ ना हम तमाम अपने बरादरान वतन जो हिंदू भाई हैं, सिख ईसाई भाई जो भी है ना, उनको सबको बुरा कह रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं जो हैं, जो मुजरिम हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ इस पर। अच्छा, नहीं भेजा जा रहा है, नहीं भेजा जा रहा। मुसलमान बताइए मुझे, आप परेशान हैं। अब तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें जो पढ़ा लिखा तबका है, महमूद पराचे साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर आप उसमें FIR कराते हैं और हल्की फुल्की FIR कराते हैं जिसमें कि घंटे 2 घंटे रखा, 2-4 दिन 5 दिन, उसके बाद में फिर बाहर हो जाते हैं, तो एक तरह से आप उसके ताउन में शामिल है, ताउन कर रहे हैं उसका। अच्छा, अगर आप कराना चाहते हैं FIR तो पढ़े लिखे लोग महमूद पराचे की उस वीडियो को देखें और जो सख्त धाराएं हैं, समझ रहे हैं, और कोई अलग से धारा नहीं लगनी है, जो उसका जुर्म है उसके जुर्म के मुताबिक जो उसका जुर्म है, और उसके लगने के बाद इस आवाज को भी उठाया गया है। यूपीए लगाना चाहिए उसके ऊपर, और साथ साथ सख्त धाराएं लगाएं और फिर इस तरह की कार्रवाई की जाए। जब इनसे ये कहा गया होगा कि आप इस तरह के बयान दो, तो इन्होंने कहा होगा नहीं जी मैं नहीं देता, गाजियाबाद के जो SHO साहब हैं मुझे पकड़ के ले जाएंगे, मैं नहीं कर सकता, ये तो बड़ा गलत बात है। तो इन्होंने कहा होगा पहले मेरी बात कराओ गाजियाबाद पुलिस से, पहले मेरी बात कराओ यूपी की STF से, पहले मेरी बात कराओ दिल्ली स्पेशल सेल से, क्योंकि वो भी हर जगह चली जाती है, फिर मेरी बात कराओ NIA से। जब ये सभी अधिकारी, इन सभी संस्थानों के अधिकारी मुझे ये गारंटी दे देंगे कि वो मुझे अरेस्ट नहीं करेंगे, तब मैं ऐसी कोई बेकार की बात बोलूँगा। ये है इसका सबूत। और इसके अलावा इनकी हिम्मत नहीं है, मैं इनको जानता हूँ, इनके साथी को भी जानता हूँ मैं, इनकी इतनी सी हिम्मत नहीं है जो ये चूं भी कर जाएं इस प्रकार की भारत के संविधान और कानून के खिलाफ, जब तक इनको पूरी तरीके से हौसला ना दिया गया हो RSS और BJP के द्वारा। अगर कोई केस कर रहा है तो वो अच्छी कानूनी सलाह लेके, मैं सेक्शंस भी बता रहा हूँ, सेक्शन 111 BNS और सेक्शन 15, 16, 18, 20 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत ही होना चाहिए। उससे कम धाराओं में आप कराओगे तो इन जैसे लोगों की मदद ही करोगे। उस इलाज को कमजोर करने के लिए हल्की धाराओं में FIR कराएगी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, ताकि यति नरसिंहानंद से जो वादे हुए हैं
कि हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, ये सबसे पुलिस वालों से बात करा रहे हैं, जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ और जो बिल्कुल सटीक अंदाज़ा लगता है मुझे, वो पूरा हो सके। देखो हमने तुम्हारे खिलाफ ये छोटी छोटी धाराओं में करा दी ना, कुछ नहीं होगा, तुम करते रहो। लगता तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ज़बरदस्त टिप्पणी की है। हो ये रहा है, वो चाहते हैं मुसलमान इस वक्त के ऐसे हालात से गुजर रहा है, वो घर में बैठे तो परेशान, रोड पे आए तो परेशान, रोड पे निकलते हैं यही पत्थरबाजी कर देते हैं, मुसलमानों के सर पर वो ताज सज जाता, ये पत्थरबाज हैं। और फिर उसके बाद में जो मुसलमानों की तोड़ाइयाँ शुरू होती हैं, आते हैं हमारे बहुत से मुसलमान जज्बात में कि नहीं साहब नबी की मोहब्बत में साहब क्या हमें जान भी देना गवारा, बात ठीक है, लेकिन कुछ करके जाओ तभी जान देना गवारा सही होगा ना। कुछ कर भी नहीं कर पाओ और उसके बाद में तुम्हें तोड़ दिया जाए और जेलों में डाल दिया जाए। उमर खालिद क्या है जुर्म उनका, कितने जेलों में सड़ रहे, कि तुम अल्लामा कमर उस्मान गानी साहब जेल में हैं, छुड़ा लीजिए उनको आप। सलमान अजहरी साहब को छुड़ा लीजिए आप उनको, यही आपके साथ में भी होना है और यही हो रहा है। आप घर वापस बाद में आएंगे, बिल्डोजर पहले पहुंच जाएगा। जी। इस तरह की बातें हैं ये। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए, हमें ज़्यादा ना आजमाया जाए। वाकई मुसलमान वही है कि अपने नबी की खातिर अपनी जान को भी कुर्बान कर सकता है, लेकिन हम फिर भी अगर खामोश हैं तो हम संविधान को, कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहते। हम फिर यही मुतालबा करते हैं कि वो जो चीख चीख करके इस तरह की बातें करते हैं कि जो कानून को अपने हाथ में लेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, कि आखिर फिर वो कहाँ गए उनके कानून यहाँ काम क्यों नहीं करता नजर आ रहा है। ऐसे में फिर हमें ये लगता है कि फिर हुकूमत हिंद और अदलिया तक इसमें शामिल है, उनकी पुष्टपनाही इनको हासिल है, हमें फिर ये लगता है। अब ये कह सकते हैं आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप यही समझ लीजिए अब, क्योंकि फिर यही लगता हैगा। इसलिए पढ़े लिखे लोग जो वकील हैं आए सामने और जो सख्त धाराएं हैं उसमें FIR कराएं। समझ रहे, ये नहीं फोटो बाजी के चक्करों में ना पड़े, ज़्यादा रैली निकाले और ये करें और गए वहाँ पर तो फोटो और ये फोटो मत पड़िए चक्करों में, कुछ काम खुलूस के साथ कर लीजिए। फोटोग्राफी के लिए आपके पास बतेरा टाइम है, कर लेना किसी और मौके से। इसमें जो है खुदा रहा ऐसा कुछ मत करो, जो काम करने के वो करो, मुनज़्ज़म हो, मुत्तहिद हो। आज भी जिन मुल्कों के अंदर इस तरह के कानून हैं, पाकिस्तान के अंदर इस तरह का जब ये कानून है कि नबी की शान में अगर किसी ने गुस्ताखी की, तो अभी की थी मुफ्ती तारिक मसूद ने, हिम्मत नहीं हो पा रही है उसकी पाकिस्तान में कदम रखने की। इतना डर और खौफ होना चाहिए हमारे। मैं तो कहता हूँ कि कानून बनाना चाहिए इस तरीके का कि जो भी हमारे रहनुमा हैं, जो भी हमारे पेशवा, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी उनकी शान में गुस्ताखी करे, अगर तुम्हारे इस तरह के पेशवा है तो उनकी शान में हमारी तरफ से अगर कोई करे तो उसको भी सजा हो। दोनों के लिए कानून बने, सबके लिए कानून बने। ये जमहूरी मुल्क है, ये भाईचारे के साथ चल सकता है, तरक्की तभी कर सकता है। इस तरह से ये नफरती चिंटू आ करके हमारे भाईचारे को आग लगाने की कोशिश करें, इस मुल्क को झुलसाने की कोशिश करें, तो ऐसों से अपने आप को बचाना है और हम सबको इसमें साथ में शरीक होना। खुशी की बात यह है कि इस चीज की मजम्मत सभी धर्म के लोग कर रहे हैं। बस यही कहना चाहूंगा मैं। जी शुक्रिया हज़रत, जज़ाकल्लाह। और बहरहाल इससे एक ही बात समझ में आती है मेरे कि हज़रत सबसे पहली चीज़ तो वीडियो को शेयर ना किया जाए। हाँ, जो हुज़ूर की, इससे क्योंकि इनके तो हौसले और बुलंद हो रहे हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि हमारी बात इन लोगों तक पहुंच रही है। ये गलती हम खुद भी कर चुके हैं। इस तरह की कोई बात हो अगर तो इनकी तस्वीर लगा दें स्क्रीन पर और इस तरह से बयान कर सकते हैं। जो गलाजत इन्होंने बोली है उनको शेयर ना करें, उनको शेयर अपनी जबान से भी ना कहें कि इसने ऐसा कहा। हाँ, ये भी ना कि इन्होंने नाज़ेबा अल्फाज बोले हुजूर की शान में। और दूसरी चीज़ ये है, रैली निकालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मुमताज़ जलील साहब ने बहुत बड़ी रैली निकाली, उससे कोई फ़ायदा निकल के सामने नहीं आया। क्या करना है, खामोशी के साथ में जो धाराएं महमूद पराचे जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है उन्होंने बताई हैं, इस तरह से खामोशी के साथ में मुख्तसर से लोग जाकर के थाने में या SDM ऑफिस जाकर के वहाँ पर ज्ञापन दें और वहाँ पर जाकर के FIR कराएं इनके खिलाफ। बाकी ज़्यादा सोशल मीडिया पर इनके ताल्लुक से जो कर रहे हैं वो उस वीडियो को ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं ये। और क्या लगता है सोशल मीडिया पर ये वायरल किया जा रहा है बता करके कि साहब जिस बात का इंतज़ार था, बड़ी खुशी की बात है भैया, हो गया, गिरफ्तारी हो गई, नरसिंह किया। अरे कुछ नहीं, नाश्ते पानी चल रहे हैं उसके, बड़े मस्ती से बड़ी कुर्सी पर बैठा है वो, मज़े आ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, उसकी मीटिंगें चल रही हैं लोगों की। हाँ, यही हो रहा है बिल्कुल। वो तो हीरो बन गया, हीरो उनकी नज़रों में, मगर बना यही रहे। ये बात भी आप समझ लीजिए। इसी का उल्टा करके देखें आप एक मिनट के लिए, अगर किसी मुसलमान ने इनकी देवी देवताओं के ताल्लुक से इस तरह से कुछ कह दिया होता तो क्या यही सुलूक किया जाता? कानून ऐसे ही काम करता जैसे अब कर रहा हैगा।
اس لیے ہم پھر یہی مطالبہ کریں گے، اریسٹ کیا جائے، سخت سے سخت اس کے خلاف دھارائیں لگائی جائیں، یو پی اے سے کم تو ہمیں منظوری نہیں ہے جی سمجھ رہے، یو پی اے اس کے خلاف ہونا چاہیے، لگنا چاہیے۔ سمجھ لی ہوں گی باتیں آپ نے، کافی حد تک بول دیا، معروف بھائی نے بول دیا، ہم نے بھی بول دیا یہ، اور سن بھی رہے ہیں آپ باتوں کو، معروف بھائی کو سنتے ہیں آپ ماشاءاللہ، تو اس لیے ان باتوں کو بھی سمجھیں اور ساتھ ہی ساتھ ان باتوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ جی کوشش اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے، آمین۔ ان پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے اس ملک میں امن و سکون قائم فرمائے، آمین۔ شر پسندوں کے شر سے سب کو محفوظ و معمون فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔